Very welcome to both of you and thank you for being here. So, as जैसा मैम ने बताया, it's from 1st August to 31st August, the team is moving and they are doing all their hard work so that they can educate us about this disease. So, my first question would be, ma'am, what is this disease? What is diphtheria? If you could explain our students so that they can also learn from it and then we can move further. Oh, hi everybody, I'm Dr. Chelsea. So diphtheria is a bacterial infection transmitted by Corynebacterium diphtheriae. The bacteria's name is called as Corynebacterium diphtheriae, and this infection transmits through respiratory route. So whenever you cough or you sneeze, the diphtheria's bacteria gets transmitted through the respiratory droplets. And because of this infection, it can affect any age group, but specifically it is more prone to affect the children less than 16 years is the common predominance of the disease factor. So when you have this disease, the major symptom in this disease is that, can you see in the photograph, there is a white lesion on the throat. So this white lesion is called as a pseudomembrane. The membrane is called as pseudomembrane. It is a greyish white membrane which is adherent in the throat, and because of this membrane there will be difficulty in swallowing, difficulty in breathing, and along with that this membrane also releases toxins inside the blood system, which will ultimately it will affect your heart and cause myocarditis. It might affect the neural system and child might even get paralysis after diphtheria. So these are the common signs and symptoms of diphtheria and the causative organism. Ma'am, as you mentioned that it is like very similar to cough and cold. So how do we differentiate? Like the students, we have very common problem. Cough and cold is a very common problem that's seen especially in the Indian society. So how do you differentiate from diphtheria and the common problems that are occurring? So whenever there is a suspected diphtheria case, whomever we suspect diphtheria, the physician will do an examination of the throat. So when in the throat, if he sees any greyish white patch or a greyish white pseudomembrane, and along with that there is history of not vaccination. If the child is not vaccinated with TD10 and TD16, which we are planning to vaccinate them with, at 10 years and 16 years we get a TD booster. So if the child is unvaccinated and there is a greyish white membrane with fever and sore throat, then that is a case of suspected diphtheria. Can we add one thing? Is the taken swollen problem is also? Sometimes what happens, there will be swelling of the neck, which is a classical feature of diphtheria. You can Google it in internet, what is bull neck diphtheria. So the child's neck will become like that of a bull, जिसको कहते हैं bull neck diphtheria. That is the last stage of diphtheria. After that there will be difficulty in swallowing, so many disorders happen, and ultimately some children we lose, the child dies. So this is one of the feature of diphtheria. Sir, can we elaborate on what are the common symptoms that we see and when we can decide, like before we go to the doctor, as I mentioned that it's very common that we have cough and cold and we treat it at home through home remedies mostly. That's what is done. दादी नानी के नुस्खे हम लोग घर पे अपनाने लगते हैं. So sir, how do we, like as ma'am mentioned, these are very medical terms, but for a common person, like अगर उसे खांसी हो रही है, उसे बुखार आ रहा है, तो how do you differentiate and from when we should start कि नहीं, now this is the time that I should see a doctor? Yeah, thank you all of you. बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है और डॉक्टर चेल्सी ने आप लोगों को बहुत ही टेक्निकली बता दिया कि डिप्थीरिया के क्या रीज़न होते हैं ना. अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो देखिए फीवर एक कॉमन सिम्टम होता है कि आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है, ठीक है. तो फीवर इसमें भी आता है. इसके अलावा अगर आपको डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है तो जैसा मैंने अभी ऐड किया था कि आपको कोई भी चीज़ निगलने में, आप खाना खाएंगे या पानी पीना चाहेंगे तो निगलने में दिक्कत आती है. इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कारण है कि जैसे आप सांस, कई बार ऐसा होता है जो आपने बताया कि सूडोमेम्ब्रेन में इन्फ्लामेटरी पैचेस आते हैं तो उसकी वजह से सांस लेने में भी आपको दिक्कत होती है. तो ये कुछ कॉमन है, वरना जितने भी आपने निमोनाइटिस की बात किया, आज का जो ये प्रोग्राम था इसमें बेसिकली हमें ये करना था कि हम कोई भी कम्युनिटी एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होता है बस उससे बचने के लिए हमको ये प्रोग्राम करना, और सरकार भी यही चाहती है. कोरोना में आपने देखा दैट वाज कम्युनिटी एक्वायर्ड. इसी तरह जो निमोनिया होता है
कुछ हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं, कुछ कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं। तो डिप्थीरिया इज़ ए कम्युनिटी एक्वायर्ड डिसीज, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। और अदरवाइज वी कैन टॉक द रिगार्डिंग सिम्टम, तो कॉमन सिम्टम है लाइक फीवर इज़ कॉमन, स्वेलन में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और बाकी वो आपको जांच से ही पता चलेगा कि ये डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है। सर जैसा आप अभी कोविड का नाम लिया, डू वी ऑल्सो हैव लाइक लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इन दिस? There is no No. loss of taste and smell, No. but there will be difficulty in swallowing, and there will be history of not vaccinated for Yes. diphtheria. अच्छा, now coming to the vaccination, ma'am. First, I would like to ask कि who are the common people who are like mostly affected by it? What is the common age group that's affected? Common age group is less than 20 years. यूजुअली हमारा जो डिप्थीरिया प्रोग्राम इससे पहले चलता था, वी यूज टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन लेस देन 5 years. बाद में जैसे जैसे वी फाउंड आउट मोर एंड मोर केसेस, वी स्टार्टेड सीइंग दैट ओल्डर एज ग्रुप चिल्ड्रन आर ऑल्सो अफेक्टेड मोर. We have got cases of 10 years, 11 years, 13 years, 14 years. And that is when Government of India thought we should expand the immunization to 10 years and 16 years. So anybody less than 16 years is more vulnerable for the disease. And talking about the disease, ma'am, how is it fatal? मतलब क्या like we have to take that much care of it? अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो 100% it is a very fatal disease. Sometimes it causes death of the child because of the pseudomembrane, which sometimes releases the toxin, causes myocarditis, so heart failure हो सकता है, and या आपको पैरालिसिस तक जा सकता है, या बच्चा का डेथ भी हो सकता है. So that is why, since it is a fatal disease, government is running a very big program for it. एक्चुअली एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। देखिए, कोई भी आई थिंक ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि मेडिसिन और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग को पता होगा। तो जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, उसके लिए बेहतर यही है कि वो वैक्सीनेटेड होके हम उससे अपनी कम्युनिटी को बचा लें। तो डिप्थीरिया इज ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, और इसकी जो एज ग्रुप है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग सिंस बर्थ से, जब हम अपने बच्चे को 1.5 माह में यानी 42 दिन पे पहला पेंटा का डोज देते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अगेंस्ट get vaccinated. Get That's the Even right time. before that, when the mother is pregnant, we start her with a TD TD vaccine. vaccination. Yes, also, yeah. So the mother will be vaccinated with TD. जब बच्चा पैदा होता है 1.5 month में पेंटावैलेंट 1 Yeah. देंगे, and then we'll give Penta पेंटा 2, पेंटा 3, फिर 5 years में बूस्टर देते हैं, फिर 10 years में, 16 years में बार बार देना पड़ता है, because the vaccine is a killed vaccine. कई वैक्सीन आपके लाइव वैक्सीन हैं, कई आपके किल्ड हैं. सो जैसे आपको पोलियो पिलाते थे, दैट वाज एन ओरल पोलियो वैक्सीन था, वो लाइव वैक्सीन है. वो अगर 1 डोज 2 डोज में भी इट वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज इट्स अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन. अगर किल्ड वैक्सीन है तो बार बार हमें देना पड़ता है. इट्स लाइक आपका साबुन इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, पूछते हैं ना कि बार बार क्यों हाथ धोना पड़ रहा है. बट इन DPT या डिप्थीरिया यू हैव टू टेक इट फ्रीक्वेंटली, सो दैट उतना इम्यूनिटी आपको मिल पाए. बिल्कुल. नाउ मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हाउ डज दिस डिसीज कम्युनिकेट? लाइक इज इट ईजिली कम्युनिकेबल लाइक कफ एंड कोल्ड, एंड व्हाट शुड बी द प्रिकॉशन? क्या हमें लगातार, जैसे हम कोविड में भी कर रहे थे, वी वर यूजिंग सैनिटाइजर्स, वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स, वी आर वॉशिंग आवर फेसेस, एंड वी वर कवरिंग आवरसेल्फ विद मास्क, अगर हमें वो है तो. सो प्लीज कैन यू लाइक Every disease has a transmission pattern. For example, when coming to diphtheria, it's a seasonal transmission. So usually the disease transmits in the month of rainy seasons, like from July to December. So that is why we conduct the school campaign also in this time, so that we can prevent the child from acquiring the disease. So usually, like I told, that diphtheria is a communicable disease. It transmits through respiratory droplets. So मास्क की ज़रूरत है इफ़ यू आर इन अ कॉन्टैक्ट विद अ सस्पेक्टेड डिप्थीरिया केस. अदरवाइज ऐसा नहीं कि यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड यू विल गेट डिप्थीरिया. बट इफ देर इज़ एनी नोन पेशेंट इन योर community or in your school, if somebody has suspected diphtheria, it can spread to other children. So that's why we are planning to vaccinate everybody, so that we can cut short the transmission of the disease. And one more question, ma'am. Like if somebody, अगर like normally we see in these times there is cough and cold, जो हम लगातार बात करें, it's very similar to that. So how do we differentiate? Because we see many people don't take care of themselves. Like if they are sneezing, if they are like coughing, they don't take care of themselves. So what should we do in order to take that precaution? So ideally, when someone is coughing, they should cough in their elbow so that it doesn't spray through everyone. For our purpose, you can wear a mask and you have to be vaccinated, which is the best option to protect yourself. Okay.
बिकॉज मेडिसिन और वैक्सीन में डिफरेंस क्या है? मेडिसिन इज आफ्टर यू गेट द डिसीज, बट वैक्सीन इज समथिंग which is before you get the disease. It will provide you protection, because if you are vaccinated, even if you get the disease, you might get mild symptoms but you will not die because of the disease. ये कोविड में भी हमने देखा होगा इसको, वैक्सीनेशन होने के बाद भी डिसीज हो सकता है बट मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी आपका कम होगा. कैन वी ऐड वन थिंग, इट इज ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट. यस, तो वो आप प्लीज तो जैसे भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस का प्रिकॉशंस हम लोग रेगुलरली करते हैं, वॉशिंग ऑफ हैंड्स, नॉट टचिंग द सरफेस एंड टचिंग योर नोज एंड माउथ, एंड देन यूजिंग अ मास्क in public places or in a crowded place, and if somebody else is infected, you should stay away from them so that you don't get that infection, and it could be a viral infection or it could be a dangerous infection like diphtheria. Now ma'am, talking about the vaccination, as you mentioned कि अगर हम शुरुआत में कर देते हैं when the mother is pregnant or when the child is born, if somebody has not taken that, so what's the next process? How do they get vaccinated? And if there is anything called like कि अगर हम पहले लेंगे ज़्यादा अच्छा है या बाद में लेंगे, या it would work the same way? Ideally, whichever vaccine is supposed to be taken at whatever age, then only it produces maximum immunity. Suppose अगर गाइडलाइन बना है कि 6 वीक्स में पेंटावैलेंट फर्स्ट वैक्सीन लगना है, मीन्स इफ़ यू वैक्सीनेट द चाइल्ड एट 6 वीक्स, अच्छा इम्यूनिटी आपका प्रोड्यूस होगा. सो इफ़ द चाइल्ड इज़ लेस देन 5 years, लेस देन 7 years, वी कैन वैक्सीनेट द चाइल्ड विद TPT एनी टाइम. बट आइडियली इफ़ यू फॉलो द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, that will deal maximum immunity production and will protect the child better. And as I said, 10 years में 16 years में booster of TD you have to take. So if somebody has not taken the initial vaccine, so can they take the booster and then will they have to take another dose again, or will that help? If you have been vaccinated in 10 years for TD10, you don't have to repeat the vaccine. If you have been vaccinated at 16 years for TD16, you don't have to repeat. But if you are unvaccinated, even at 30, you can take the TD10 vaccine. Okay, so even if a man has crossed a certain age, they can take that vaccination, or is there any like it's till 16 or 20, by that time you should be vaccinated? Maximum is 16. We can understand with our example. Yes, sir. Schedule vaccination and supplementation. तो शेड्यूल वैक्सीनेशन क्या है कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम 24 आवर्स के अंदर उसे हेपेटाइटिस बी का टीका लगा देते हैं ताकि वो हेपेटाइटिस यानी पीलिया से सुरक्षित हो जाए. उसके बाद 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर जब उनकी आयु 9 माह की होती है, फिर 1.5 साल पे, फिर 5 साल पे, फिर 10 साल पे, फिर 16 साल पे. तो एक शेड्यूल है. इसको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम बच्चों के क्लास करते हैं तो हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ कि आपकी 5 पीरियड हम लेंगे, हम 8 से 9:30 मैथ पढ़ाएंगे, फिज़िक्स पढ़ाएंगे. अगर इस पूरे शेड्यूल में कोई बच्चा ड्रॉप करता है तो इट इज़ सिस्टम फेलियर और चाइल्ड फेलियर? चाइल्ड फेलियर. Yes sir. क्योंकि शेड्यूल से ड्रॉप कौन हुआ? Child. तो अब इस बच्चे को अगर हम एजुकेशनली उसकी इम्यूनिटी देखें तो आई थिंक अगर कोई बच्चा जिसने 5 क्लासेस को टाइमली लिया तो दोनों की इम्यूनिटी डिफरेंट होगी. सेम थिंग इज हियर. इफ़ कोई बच्चा अगर कोई भी अगर वो टाइमली वैक्सीनेटेड है तो चाहे वो कम्युनिटी एक्वायर्ड कोई इन्फेक्शन हो या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो, वो अपने को सेव करेगा. या फिर कोई बच्चा ड्रॉप होता है. अब यहाँ पे जो बच्चे बैठे, जैसे अगर अभी हमारा टारगेट है गवर्नमेंट का TD10 एंड TD16, वाई 10 वाई 16, व्हाट द बिहाइंड रीज़न? 10 साल के और 16 साल के बच्चों को क्यों चुना गया? क्योंकि जब आप इस एज का एक असेसमेंट करेंगे तो इस एज में कई बार हमें कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं. At 10 and 16. या ओके. तो अगर कोई बच्चा प्रायर दीज ईयर्स, अगर वो अपने बचपन से सिंस द बर्थ ऑलरेडी गॉट ऑल वैक्सीन एट टाइम, बट फिर भी हम ये कहेंगे कि ये जो डोज है 10 साल और 16 साल, ये उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? 2 पर्पज़ हैं इसके. एक तो जब कोई बच्चा वैक्सीनेटेड होता है तो उसकी सेल्फ इम्यूनिटी बूस्ट हुई, बट वो बच्चा हमारी कम्युनिटी एक्वायर्ड जो वायरस हैं, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन फैला सकते हैं, उसमें उस बच्चे का क्या रोल होगा?
तो उसकी एंटीबॉडी भी हमें हेल्प करेगी उस कम्युनिटी एक्वायर्ड वायरस को स्प्रे करने से। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें ये टीका 16 साल और 10 साल के बच्चों को लगाना है। अब इसमें एक जो ट्विस्ट अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, अभी मैं कल 2-3 स्कूलों में गया तो बच्चों ने कहा कि हमारे को टीका लगा हुआ है, हमने प्राइवेट डॉक्टर क्या लगाया। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मुमकिन है कि उन बच्चों को कोई चोट लगी, वो गए हो प्राइवेट डॉक्टर क्या, तो कौन सा टीका लगाया होगा प्राइवेट डॉक्टर ने? टीटी, टेटनस टॉक्साइड, बट इट इज़ नॉट डिप्थीरिया कंटेनिंग वैक्सीन। आपने टेटनस दिया, बट व्हाट अबाउट द डिप्थीरिया? टेटनस के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो न्यूनेटल टेटनस है वो भारत से एलिमिनेट हो चुका है, बट डिप्थीरिया इज रनिंग। ठीक है, तो अब अगर किसी बच्चे ने पिछले 6-7 महीने में किसी डॉक्टर का टीका लगवाया भी है तो उसे भी यहाँ पे कोई रिफ्यूज़ल या अवॉइडेंस नहीं रखना है, मतलब अगर वो बिकॉज द डिप्थीरिया कंटेनिंग वैक्सीन। बट इफ डिप्थीरिया कंटेनिंग वैक्सीन ले चुका है देन इसमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। Yes. बट इफ द चाइल्ड डज नॉट हैव proof or documented record that I have received a diphtheria containing vaccine within the last 5 years, then we will not vaccinate the child again. Okay. And ma'am, one more thing. What's the time duration for these vaccinations? If you could just explain. And when which vaccine is given? So at birth we give hepatitis B, oral polio, and we also give BCG, जो हमें tuberculosis, severe form of tuberculosis से बचाता है. Then at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, we vaccinate the child with pentavalent vaccine. Penta is 5, so it contains 5 vaccines, and one of them is diphtheria. So pentavalent, you get vaccinated at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, and then the schedule comes at 9 months. You will be vaccinated with measles rubella vaccine. You will have also an additional polio vaccine, and उसके अलावा you have a PCV, which is called as pneumococcal vaccine, which helps you prevent pneumonia. And then at 16 to 24 months में you get a DPT booster, which is a diphtheria containing vaccines and a measles rubella का second dose. After that at 5 years you again get diphtheria DPT vaccine, and then at 10 years you will have TD10, and 16 years you will have TD10. Ma'am, now if somebody who, like you mentioned, ki even if you have taken the vaccine, there is a chance that you may acquire the disease. So in that case, what's the precaution other than, like as you mentioned, ki mask pehniye, sneeze? If you is there any precaution for what you eat, what you drink? Are there any such precautions? There is no limit or curtailment on eating and drinking, but if there is a throat infection, fever, then you can get treated by your pediatrician, who will also prescribe you local antibiotics, which will also work against the bacteria, but it won't be fatal. If it becomes fatal, then we have to give something which neutralizes the toxin that the disease produces. So that is called as diphtheria antitoxin, and which is a very costly drug. So it's called as DAT, diphtheria antitoxin, क्योंकि diphtheria जो corny bacterium है, it produces toxins. जो it's like a poison. That toxin only goes and affect your heart. It affects your nervous system. It affects your swallowing. So to neutralize that toxin, the treatment is diphtheria antitoxin. So this is something which is prescribed only in severe cases. And yes. Two things is very important. If any child are facing that symptom, first is please contact with his pediatrician, family doctor. अदरवाइज कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि हमें गले का इन्फेक्शन है, ठंडा पानी नहीं पीना, खांसी आ रही मास्क लगाना। एक डॉक्टर साहब ने भी ऐड किया कि जैसे छींक आई, तो अब तो मुझे लगता है ये हमारे बिहार में भी आ गया है। हाँ बिल्कुल सर, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सीखा सर। हैंड वॉश करने लगे। बिल्कुल सर, हैंड वॉश हमें लगता है पूरा इंडिया ज़्यादातर हैंड वॉश ही कर रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है हैंड वॉश। बिल्कुल सर। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि कम्युनिटी एक्वायर्ड जो डिजीज़ होती है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल अगर कोई आता है तो आप एडवाइस कर दें, एंटीबायोटिक एडवाइस कर दें, एंटीबायोटिक नहीं स्टेरॉइड एडवाइस कर दें, है ना, आप कई सारे मल्टीपल टेस्ट हैं आप कराते जाएं। बट जब हम कम्युनिटी एक्वायर्ड की बात करते हैं तो फिर हमारे लिए एक एक बच्चा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और वैक्सीन का तो यही कमाल है, मेडिसिन क्या करता है, इलाज करता है, और वैक्सीन हमें इतना बचाता है। मैं 2 एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। पोलियो हमने ख़त्म किया, हाउ इट वाज पॉसिबल।
India's major success in disease elimination and Polio? public health is polio. अगर पोलियो में हम सक्सेस वी वर एबल टू डू इट, देन इट इज़ पॉसिबल दैट एनी डिसीज़ कैन बी एलिमिनेटेड. क्योंकि पोलियो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है दैट आवर माइक्रो प्लानिंग का तारीफ इवन आउटर कंट्रीज दे डू, बिकॉज द वर्ल्ड अप्रिशिएट्स पोलियो माइक्रो प्लान. क्योंकि इंडिया हैज़ अ वेरी डिफरेंट जोग्राफिकल layout. There is tribal regions, there is hilly region, there is desert region, there is a plain region. It's not easy to go and vaccinate every child in India. So the micro plan we developed, the teams how they even in running train में जाके पोलियो पिलाते थे. So that dedicated health department was there to eliminate diseases. And मुझे- polio success story should always teach you that you should vaccinate. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इन बच्चों को पता भी होगा, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ एक पोलियो प्रोग्राम ऐसा था जिसमें हमने 1 वीक में भारत के सभी चूल्हे, नट हाउस, चूल्हा समझते हैं ना, फैमिली, Fire हो से सकता है एक count घर में करते 5 चूल्हे हों, मैं चूल्हे की बात करूँ, विद द हाउस मार्किंग. आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, पोलियो ने जो भारत में पोलियो का हमने एलिमिनेशन किया, इसने पूरी दुनिया को एक दिशा दे दी कि प्रोग्राम चलाया जाता है. आज कोविड में हम क्यों जीते? वो बिकॉज ऑफ द माइक्रो प्लानिंग ऑफ पोलियो. कोविड का भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पोलियो माइक्रो प्लानिंग से किए थे Yes. हम, क्योंकि वो जो बना है पोलियो माइक्रो प्लान, इट वाज आवर एसेट. And that has helped in most of the diseases. फर्स्ट हाउस से लास्ट हाउस आपको पता चलता है कि फर्स्ट घर किसका है, लास्ट घर किसका है, Within and how week- many houses we should cover in a day. Within week you can cover every chula, entire the country, not a state, मतलब पूरी हिंदुस्तान में एक हफ्ते में. और ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड बात मैं कह रहा हूँ. बिल्कुल सर. आप भारत सरकार की वेबसाइट पे देखेंगे, आप WHO की, इवन इफ एनी हाउस वाज फाउंड द मिस्ड, द WHO रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट की ये घर आपका छूटा हुआ, और डेट बिकॉज ऑफ द 2 ड्रॉप ऑफ पोलियो वैक्सीन. That creates a huge issue if you miss a house in polio. Definitely, ma'am. We have been working very hard. The department has been working very hard, and if we miss any house, then we fail somehow. And it has been a huge success for the Indian government. It has been a huge success for all the doctors who have been working on it, and it has been a huge success for all those who have been involved in the planning. And it has definitely helped us how we contained COVID. Especially a big vaccination drive was conducted. Even to those who were at home, people went there. They could identify those people, and all kind of vaccinations were provided at home. So that has been a huge success, and I guess that was the reason that we were appreciated by the world. Polio program was introduced as what is the migratory population, what is the HRP high risk group population, what is the stone cutter. इस तरह की ये चीज़ें पोलियो प्रोग्राम में हमें दिया. ब्रिकलिंग्स तक जाके पोलियो पिलाते हैं. Bilkul, ma'am. We definitely reached the lowest population that was there. So that has been a huge success. Coming back to diphtheria, ma'am, one more question would be like, if somebody is not able to reach the doctor on time, अगर उसने पता नहीं चल रहा है, what are the remedies that they can use at home so that just in case अगर उनके पास थोड़ा time कम है, they can have that time frame to reach the doctor. If you could suggest anything that कोई precaution जो वो घर पे ले सकते हैं, कोई ऐसी घर के नुक्स. There is nothing like a home-based precaution for diphtheria. For fever, you have paracetamol, and a doctor prescribed antibiotic only you should take. So I would never advise you to take any antibiotic upon your own. But my concern will be the moment you have any symptom of difficulty in swallowing and you have not been vaccinated, I would always recommend to consult the nearest urban primary health centers. We have all over the शहर में है गवर्नमेंट का, कहीं भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, और योर पर्सनल पीडियाट्रिशियन. So I want one thing add. Fever is a not disease. Fever is not a Fever is a symptom. I would suggest and request to all of you, अगर किसी को घर में बुखार है तो प्लीज़ आप वेट मत करिए. आप इंतज़ार ही मत करिए कि 3 दिन या 2 दिन हम कालपोल खा लें, हम पैरासीटामॉल ले लें. देखिए क्या है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, पैरासीटामॉल लोग खा रहे हैं, ठीक भी हो जाए, बट बुखार उतारना बहुत कमाल की बात नहीं है. इम्पोर्टेंट इज़ डेट कि बुखार आया क्यों. तो डायग्नोसिस के लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप फीवर को डिजीज मत मानिए कि मेरा बुखार उतर गया तो आई एम फिट ना. Sir, एक small question I would ask.
ये हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन मिथ, आई वुड से मिथ बिकॉज यू सेड इट, कि फीवर आता है तो वी जनरली द होल हाउस, आई गेस एवरीबडी हैज स्टार्टेड वेटिंग फॉर एटलीस्ट 2 or 3 days टेकिंग पैरासीटामॉल्स. आपने अभी कहा कि अगर बुखार है तो आपको विजिट करना चाहिए. शुड वी वेट फॉर अ डे और 2 और वी शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर? For fever, it depends upon what is your comorbidity. Suppose if you are diabetic, you have kidney disease, you have history of carcinoma like cancer disease, or you have something else, then immediately you have to run and go. In a very healthy individual, you can wait for 1 day or 2 till you consult the doctor. But fever के साथ आपका और एक symptom अगर add on हो जाता है, like you also have diarrhea, or you have throat pain, or if you have difficulty in swallowing, then I would suggest you should immediately visit the pediatrician. So I guess, ma'am, it has been a very good and interactive session. I guess हमारे जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, all the students would have definitely picked up some very good things and they would have learnt more. If अगर किसी को कोई question हो तो if they would like to ask. सर, अभी आपने जैसा कहा कि हमें बुखार आता क्यों, तो वही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बुखार हमें क्यों आता है? Whenever there is any infection in the body's response is to raise is cause acute inflammation. आपके जो red blood cells, white blood cells जो protect करते हैं, they get alarmed कि कोई infection आया है, and the person who is the owner of the body should know there is some infection inside. So they will alert you by a symptom called as a fever. थैंक यू बेटा, आपने अच्छा सवाल किया. एक्चुअली मेरा बात करने का थोड़ा सा ना वो दूसरा तरीका होता है. एक मुझे आप बताओ, जैसे कि आप यहाँ कितने घंटे पढ़ते हो आप, और फिर हम एक क्या करें कि जब एग्ज़ाम करीब हो तो बोले कि आपको आज 8 से 8 पढ़ना है. उस दिन आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होगा घटेगा कि बढ़ेगा? बताइए. बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा. समझ रहे हो आप? यानी आपकी बॉडी में कुछ तो हो रहा है ना. तो ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, आपको सेल होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना. तो एक बॉडी का फिनोमिना है कि जब आप बॉडी को नॉर्मल से थोड़ा और किसी और तरफ डाइवर्ट करते हैं तो वो आपको अलार्म करता है ना. तो अलार्म करेगा तो क्या करेगा? आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा. ठीक है ना? Then you will start searching that why this has happened to me. Yeah. So it's your body's way of alerting you कि कोई infection है, कोई intruder आया है या कुछ दिक्कत हुआ है. अब उसमें एक चीज़, जैसे आप कभी देखते हो, बहुत आप कहते हैं ना मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम सो मच टायर्ड. तो व्हेन यू रिलीज फॉर सम लिटिल टाइम, हाउ गेट यू फील? कैसा महसूस करते हैं? थोड़ी देर के बाद रिलैक्स. बट कोई इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो वो क्या करेगा? जैसे जैसे दिन गुजरेगा, वक्त बीतेगा, आपकी बॉडी में कुछ और सिम्टम्स भी ऐड होते जाएंगे, है ना. ये तो सबने महसूस किया होगा पहले भी. तो बहुत सिंपल सा है. बॉडी को, मुझे लगता है कि बॉडी पढ़ना सबसे आसान है, जो हम लोगों को कभी कोशिश नहीं करते, है ना. तो आप अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करिए. ये हमेशा आपको अलार्म करता रहता है. ठीक है? आपको पता नहीं यहाँ पे होता है कि नहीं. अभी मैं लखनऊ एक गया था, वहाँ पे वाटर बेल बजती है उस स्कूल में. हाँ, वाटर बेल यहाँ है. वेरी गुड. यस, रिमाइंडर है. मैं एक, क्योंकि इस प्रोग्राम से हम लोग गए थे, एनीमिया मुक्त भारत एक प्रोग्राम चलता है भारत सरकार का. उसमें चाहते हैं कि जो भी हमारे टीनेजर्स हैं वो एनीमिक ना हो. तो वी वॉज वेरी शॉक कि ड्यूरिंग द 10 to 19 एवरी बच्चा वाज एनीमिक. रीज़न यही है क्योंकि जो सुबह का 6 से 7 घंटा है उसमें उनके डाइट का कोई चार्ट नहीं है, और उसके बाद वो अपनी पूर्ति करने के लिए उस 6 घंटे को मैक्सिमम ओवर डाइट होते हैं. आई गेस सर दिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल एज ग्रुप. सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बच्चे तो फिर भी खेल कूद के निकाल लेते हैं. हम लोग जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए यह है कि वी हैव टू जस्ट ईट वन टाइम एंड द सेकंड टाइम दैट यू आर ईटिंग इज एट होम. तो उसके बाद बाकी कुर्सी पे बैठे हैं. सो दैट हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम आई गेस. शेड्यूल, आइदर फॉर एजुकेशन, आइदर फॉर वैक्सीनेशन, आइदर फॉर डाइट. शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसिप्लिन ऑल्सो. आप शेड्यूल से हटेंगे, आपकी इम्यूनिटी आपको धोखा देगी ही देगी. और ये कहीं भी, जैसा मैंने पहले भी कहा,
शेड्यूल आपका डिस्टर्ब हुआ नहीं कि फिर आपकी कुछ भी हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल एथिक्स हो, चाहे आपका सोशल एथिक्स हो, चाहे आपकी फिजिकल एथिक्स हो, वो आपको डिस्टर्ब करेगी। Any more questions? First of all, thank you, ma'am and sir. My question is, if we don't clean our tongue, the white patches arise on our tongue. Is there a symptom of diphtheria or not? No, that is not a symptom of diphtheria. No. Not on the tongue, but inside the throat. You see, na? Not just the throat, it's that side part है ना आपका. Those are your tonsils. So tonsils के ऊपर, and that is the center में है, that is your uvula. तो uvula के ऊपर. First of all, thank you, sir and ma'am. I am asking for that how to protect ourselves from the diphtheria. To protect yourself, the first step is vaccination, and the second step is if somebody else has an infection, you wear a mask. And third, if you have cough and cold, you also sneeze on your arm, on inside your elbow, and you also prevent the disease from transmitting to others. But for diphtheria, the best way to prevent is vaccination. एक स्मॉल हम चाहेंगे, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा आजकल कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि हाइट को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं. व्हाट शुड दे डू द बेस्ट टू गेट गुड हाइट? हम अब देखते हैं हमारे बच्चे स्कूल में खेलते हुए, मोस्ट ऑफ देम आर मच मोर वरीड अबाउट देयर हाइट्स. सो व्हाट शुड दे डू, व्हाट शुड दे ईट, एंड व्हाट शुड दे डू टू जस्ट गेन गुड हाइट? So my question is, in this season we are getting so much affected by the bacteria diseases and we are getting ill. So what is the symptom? How can we prevent ourselves by this? So the best way, like I always tell, is to maintain a good diet. Second is to get yourself vaccinated against the vaccine preventable diseases, and these two steps will actually prevent you from most of the diseases by building your immunity. So my sincere advice is to always get vaccinated and to follow good nutrition practices. Ma'am, one more thing if you could add, what should be the best diet? What should one include, especially these children, in their diet to make sure that they are healthy and fine? I would like to say it's vitamin C, because it helps prevent many of the common cold symptoms and stuff. So if you have amla or guava or anything that is rich in vitamin C, it will help you prevent a lot of infections during the rainy season. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, आप बैठ जाओ बेटा प्लीज़. देखिए, हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं ना. कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार. तो वो आप लोग एक बार कैलकुलेशन ये देखिए कि कभी कभी हम लोग 200 रुपये वाला खाना खाते हैं, है ना. कभी कभी 50 रुपये वाला, 200 वाला जैसे कि बर्गर ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, लगभग कीमत आ ही जाती है. फिर हमने कभी कभी 50 से 100 वाला खाना खाया, दाल ले ली, चावल ले लिया, एक सब्ज़ी ले ली, रोटी ले ली. आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि 20 रुपये वाला भी खाना अच्छा होता है? यस. अब वो 20 वाला खाना, जैसे 10 रुपये का खीरा ले लिया, 10 रुपये का गाजर ले लिया, वो हम में से बहुत कम लोग खाते हैं. आपने पढ़ा होगा कि एक दिन में एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है ना. कीप अवे डॉक्टर अवे, है ना. गाजर आप खाएंगे तो क्या होगा? अब मैं कहूँगा कि अगर आपको आँख अपनी बचानी है तो प्लीज़ अ कैरेट अ डे. आपको अपनी बॉडी का डिहाइड्रेशन मेंटेन करना है, अ खीरा अ डे. कुकुम्बर. तो ये आप अपना कैलकुलेट करिए कि आप 20 रुपये वाला खाना कितनी बार खाते हो. मैं ये नहीं कहता कि 200 वाला गैर ज़रूरी खाना है. आपको अगर सिर्फ फैट की ज़रूरत है तो आप 200 वाला खूब खाइए. मैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको बैलेंस, यहाँ मैं फिर वही कहूँगा, शेड्यूल एंड बैलेंस. अब इसमें एक और वर्ड जुड़ गया, बैलेंस. अभी हम शेड्यूल की बात कर रहे थे, तो शेड्यूल एंड बैलेंस. और डाइट का मुझे लगता है कि जो डिसिप्लिन है, मुझे नहीं लगता पूरे यूपी में, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने को ही कह दूँ, हम लोग डाइट की डिसिप्लिन को कभी मेंटेन नहीं करते. हम क्या करते हैं? हम सिर्फ पेट भरते हैं. बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा. जैसे कल एक बच्चा आया था, एक पीडियाट्रिशियन था आपके पास, उनकी मदर की कंप्लेंट थी कि इसकी हड्डियों में दर्द बहुत है, बहुत तकलीफ़ रहती है पैरों में, हाथों में. तो आमतौर से क्या करते हैं? हम उसको दवा लिखते हैं, कैल्शियम लिख देते हैं.
लेकिन अच्छा डॉक्टर पता है क्या करता है, वो सजेस्ट सही करता है। उन्होंने बताया कि चूँकि अब इसकी ग्रोइंग है, अभी बढ़ रहा है, तो इसकी बोन की जो डेंसिटी है ना, अब ये लंबा होने वाला है, तो इसलिए इसकी बोन में पेन होता है। तो दवा की ज़रूरत नहीं है, इसको डाइट की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी डाइट का डिसिप्लिन सही करिए, वो आपकी हाइट वाला भी प्रॉब्लम। स्टंटिंग क्यों होती है, क्यों होती है स्टंटिंग? पता है क्यों होती है? हम लोग जब माल नरिशमेंट की बात करते हैं, अगर कोई माल नरिश बच्चा है, स्टंटिंग होगी होगी उसको। तो आप प्लीज़ अपनी एजुकेशन के साथ साथ जितने कंसर्न है आप अपनी टाइम टेबल को लेके कि हमें कितनी देर फिज़िक्स पढ़ना है, कितनी देर मैथ पढ़ना है, थोड़ा सा कंसर्न होइए अपनी डाइट को लेके। आई होप कि मुझे लगता है कि अगर एक साल आज के दिन याद रखें और एक साल आप इसको कोशिश करेंगे, अगले साल आप खुद आके बताएंगे कि नहीं मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और भारत में और यूपी में अभी वो जो बच्चा पीछे सवाल कर रहा था कि बहुत ज़्यादा इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, कारण यही है कि हमारी जो लाइफ है ना, धीरे धीरे उसका जो डिसिप्लिन है वो बहुत मुश्किल में हो रहा है। और ये जो बच्चे हमारे, इनको तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट करिए अपनी डाइट पर। एक बार करके देखिए, अपने स्लीपिंग आवर्स को फिट रखिए। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, 6 days ऑफ द वीक हम लोग सुबह जल्दी सो के उठ जाते हैं, बट 7वें दिन क्या करते हैं? तो संडे बनाते हैं। ये जो संडे मनाना है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही लिखे, बस कॉपी पे रोल नंबर लिखना आप भूल गए, तो क्या होगा? अब यहाँ पे कोई 3 इडियट की शूटिंग तो चल नहीं रही कि सब मिला देंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एक दिन देखो, सूर्य निकलने के बाद, आजकल योगा का है ना मैम, योगा पूरी दुनिया में, योगा भारत को विश्व गुरु हमने बना दिया। आप जब पढ़ेंगे शत्रुघ्न जी को, चरक जी को, तो उसमें एक बात उन्होंने लिखी है कि जो व्यक्ति भोर में नहाता है उसको ऋषि स्नान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि स्नान। और जो सूर्य निकलने के पहले नहाता है उसको मनुष्य स्नान कहते हैं, और जो सूर्य निकलने के बाद नहाता है उसको राक्षस स्नान कहते हैं। तो अब आप निर्धारित करिए कि स्नान कौन वाला आपको करना है। इसी तरह डाइट, हमारे पेट में 2 ही चीज़ होती है, या तो खाना पचता है या तो सड़ता है। आपने पचा लिया आप ऋषि हो गए, आपने सड़ा दिया आप राक्षस हो गए। तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे कंसर्न वैक्सीनेशन के, चाहे डाइट के, चाहे पढ़ाई के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, आप हमें कैसे मदद करेंगे इस अभियान में? आपको अभी क्या लग रहा है? पहले तो ये बताइए कि टीडी का वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? येस और नो? हाँ कि ना? अगर आपसे कोई पूछे कि हम अपने बच्चे को टीडी का टीका लगवा लें, तो आपका जवाब क्या होगा? यस होगा। तो इस यस को आपको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? बताइए, कोई बच्चा मुझे बताए। जो हमने आपको बताया है, प्लीज़ उसको बाकी सबको बताइए, अवेयरनेस जनरेट करिए कि August 1 से August 31 वी आर हैविंग टीडी वैक्सीनेशन का ड्राइव इन एंटायर यूपी एंड इंक्लूडिंग वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। एवरी स्कूल्स में हम वैक्सीनेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स टू कम एंड गेट वैक्सीनेटेड। एक छोटा सा काम आप लोग प्रॉमिस करके जाइए, घर जाके मम्मी पापा का मोबाइल ले लीजिएगा और एक मैसेज बनाइएगा कि सभी अपने रिश्तेदारों को संबोधित करके नमस्ते, प्रणाम, जैसे आप लिखते हैं, कि आज से आप लोग 31 अगस्त तक, यदि आपके घर में कोई भी 10 साल या 16 साल का बच्चा है, तो कृपया उसे उसके स्कूल में अगर टीडी का टीका लग रहा हो तो कृपया मना मत करें। ये आपके बच्चे और देश हित दोनों में, इतना करेंगे? ये सारे बच्चे सर हॉस्टल के हमारे, तो हम हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। यस मैम, प्लीज। जिम का 10 years 2 months हो चुका है,
या 10 ईयर्स 6 मंथ्स हो चुके हैं, जिनके बच्चों के साल 10 साल 2 महीना या 4 महीना या 6, तो कितने महीने तक कंसिडर करेंगे? क्योंकि मेरे पास ऐसा डाटा भी आया है जिसमें 10 साल और 11 महीना 7 दिन है, तो क्या उन बच्चों को वैक्सीनेशन बिल्कुल वैक्सीनेट कर सकते हैं 11 साल से पहले, 10 ईयर्स 1 मंथ से लेके 11 महीने। इसका मतलब 10 to 11 के बीच में लग जाना चाहिए, तो सेम 16 ईयर्स वाला भी होगा? सेम कंप्लीटेड ईयर्स वी विल वैक्सीनेट। ओके, सो 16 to 17 के बीच में जिनका भी आ रहा है उनको वैक्सीनेशन चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू आप दोनों लोग का, एंड आई वुड ऑल्सो थैंक मैम टू हैव ऑर्गेनाइज दिस वेरी इंटरैक्टिव सेशंस। बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू स्टूडेंट्स दैट यू हर्ड ऑल दिस, एंड आई होप जो सर ने कहा है वो आप सभी लोग करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं हैं उन्हें भी इस चीज़ के बारे में एजुकेट करिए, एंड बी द टॉर्च बियरर दैट तालीम सनबीम हैज़ ऑलवेज बीन। सो थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच मैम। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच गाइज।